Hello student, how are you? Fine. Okay, today we are discussing about the how can we classify the accounts under the traditional and the accounting equations method, that means the American methods. So let us we try to understand about the some topic is here, and one by one I told you how can you consider, how can you classify the different items for the traditionals and the American approach. The first item is machinery. What is the machinery? When we consider, first we consider the traditional approach and the other you consider to the American approach. So modern approach we कह सकते हैं. The first machinery. What is the concept of the machinery? The first machinery is related to, when we consider it is machinery as a Indian concept, it is a assets. First of all, it is a assets. Second, what is the assets? Assets is a real account. Real account. And how can we consider? Machine is a assets and assets is a real account. So apply the rule of debit and credit. Real accounts, debit what's coming and credit what's goes out. If machine is the in, you debited, and it's out, it's credited. When we talking about to the American approach, modern approach, it is a assets. It is a assets, and assets, that means increase in the assets, it is a debited, and decrease in the assets, it is credited. Next item is purchase. How can you consider the purchase? Purchase, you consider purchase of the goods. Purchase, how can we consider the purchase? Purchase, what's you purchase? Goods. So when we consider as a Indian system, goods is a real account, and in and out. When in, it's debited, and when out, it's credited. Clear? When you purchase, when you consider American approach, that times it is a expense. When you purchase goods and services, that times it is a considered as a expense. How can you consider? As a expense. So it is the expenditure. नहीं? So expenses. So what is the rules of the expenses? Debit all the expenses and credit all the income. So purchase is a debit. Purchase of goods is debit. When the expenses increases, it's debited. When expenses decreases, it's credit. इंडियन अप्रोच कहते हैं इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. नहीं, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल द income and gain. So it is debited through the Indian approach and debited also to the American approach. Next topic is sale. How can you consider the sale? Sale is considered as a Indian approach. Sale is equal to goods, है ना? What is you sell? You sell the goods, and sell is goods, that means goods is real account, and real account rules in to debit, out to credit. So that means when you sell, that means out, so it is a credited. Sell is credit, sell is credit. Sell क्या करना है? क्रेडिट करना है. अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच, what do you do? Sell. Sell, that means sell is a revenue. Sell is a revenue, and what you do? रेवेन्यू का मतलब हुआ डेबिट, सॉरी रेवेन्यू का मतलब हुआ क्रेडिट, है ना. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट.
how can you consider the investment? When you consider as a Indian approach, investment is a assets, है ना. Investment is a assets, and assets represent to the real account, and the real accounts, that means when you invest assets is the in out. So assets investment is a real account and it's a category of the assets. So assets को क्या करना है, डेबिट कर देना है. रेवेन्यू के सोर्स से अगर इसको हम सोचें तो इट इज़ ऑल्सो द एसेट्स. सो एसेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, इफ़ एसेट्स इंक्रीज होता है इन्वेस्टमेंट से तो इसको डेबिट करना, और अगर डिक्रीज होता है तो इसको क्रेडिट करना. तो यहाँ इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज हो रही है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. नेक्स्ट, रेंट आउटस्टैंडिंग. Rent outstanding, what is do we mean when we consider the Indian approach? So rent outstanding, that means liabilities, and rent outstanding, that is a liabilities and it's represent to the personal account. तो इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें आउटस्टैंडिंग रेंट्स, तो रेंट्स तो क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए, और आउटस्टैंडिंग से लायबिलिटीज़ इंक्रीज होता है तो अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू इसको हम डेबिट कर सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटीज़ रूल्स क्या हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटीज़ तो डेबिट, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज़ तो इसको हमको क्रेडिट करना है. ओके. नेक्स्ट, बैंक कैश. According to the Indian approach and American approach, and according to the Indian approach, cash is a real account. According to the Indian approach, cash कौन सा account है हमारा, real account. और American approach के according to cash is assets. देख लेना है, इन है तो डेबिट करना है, आउट है तो क्रेडिट कर लीजिए. एसेट्स में भी देख लीजिए आप अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू, अगर प्लस हो रहा है तो डेबिट कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर लीजिए. बहुत आसान है समझना. नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट. नेक्स्ट हमारे पास है बैंक डिपॉजिट. अगर हम बैंक डिपॉजिट करते हैं तो हम कह सकते हैं बैंक कौन सा अकाउंट होता है, बैंक डिपॉजिट जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है. बैंक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है ना. बैंक क्या है हमारे लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और इस कारण इसको हम पर्सनल अकाउंट के रूप में ट्रीटमेंट करेंगे. अगर बैंक के रिसीवर हैं तो अगर बैंक को पैसा जमा कर रहे हो तो आप इसको डेबिट कर दीजिए, यहाँ पर डेबिट होना चाहिए, है ना. बैंक डिपॉजिट, बैंक में पैसा जमा कर देते डेबिट. अगर बैंक से विड्रॉल किए हैं तो ये क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, और इस कारण इसको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा. बहुत आसान. अगर अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू इसको समझना चाहें तब क्या होगा, अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू समझें तो बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और इस कारण एसेट्स अगर हमको पता है, एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट कर लीजिए, एसेट डिक्रीज करता है तो इसको क्रेडिट कर लीजिए. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक को कैसे करें, इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू इट इज़ रियल अकाउंट बिकॉज इट इज स्टॉक. स्टॉक क्या है, स्टॉक हमारे पास क्या है, एसेट्स है एक तरह से, नहीं तो इसलिए एसेट्स है. तो इसलिए इसको हम लोग किस अकाउंट, एसेट्स को कौन सा अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट. और अगर हम अमेरिकन अप्रोच को समझें तो ये अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग तो एसेट्स ऐसे भी जानते हैं, तो एसेट्स है. तो एसेट्स में आप देख लीजिए, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर लीजिए, अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसको क्रेडिट कर लीजिए, है ना. रियल अकाउंट्स की अगर इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू अगर एसेट्स इन हो रहा है तो डेबिट कर लीजिए क्योंकि रियल अकाउंट है, और आउट हो रहा है तो इसको क्रेडिट कर लीजिए, है ना. आउट हो रहा है तो क्या कर लेना है, क्रेडिट कर लेना है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउ. छूट दी तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट अलाउ. डिस्काउंट सबसे पहले तो डिस्काउंट हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट हमारा हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट. हम लोग ने बात किया था कि नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होगा, डिस्काउंट अगर हम रिसीव्ड करते हैं, नहीं डिस्काउंट रिसीव्ड है और नहीं, और डिस्काउंट गिवन, तो दो कंडीशन है.
जब हम ये रिसिप्ट करते हैं तो ये हमारा इनकम हो जाता है, जब हम इसको देते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हो जाता है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड, दैट मीन्स ये एक्सपेंस है। तो क्लियर है, एक्सपेंस है तो आपको डेबिट करना चाहिए इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू। ठीक, इसी तरह से इसको अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू कंसीडर कर लीजिए। तो डिस्काउंट अलाउड, दैट मीन्स डिस्काउंट आपने दिया तो इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए एक्सपेंस है, खर्च है ना, क्योंकि आपने छूट दी है। तो है डिस्काउंट एक्सपेंस के रूप में इसको कंसीडर कर लीजिए, और एक्सपेंस में देख लीजिए, एक्सपेंस को तो आप डेबिट करेंगे, क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से जो है आप सेल टैक्स को भी कंसीडर कर लीजिए। सेल टैक्स क्या है, अब सेल टैक्स को जो है हम लोग, सेल टैक्स पेबल जो है वो पर्सनल अकाउंट है। सेल टैक्स पेबल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। और अगर हम इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने इसको पेड किया है, और इसके साथ साथ अगर हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू कंसीडर करें तो ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। ठीक, इसी तरह से आप डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लीजिए। डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम लोग क्या मानना चाहिए, रियल अकाउंट मानना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी वहाँ पर डेबिट करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस को अगर हम बात करें तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए जो है इंश्योरेंस है तो पर्सनल अकाउंट है ना। और अगर वहाँ पर हम बोलें तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमको इससे पैसा मिलेगा। तो इसीलिए अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग को क्या कर मान लेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस को एसेट्स मान लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। तो इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग तो हमको इसको पर्सनल अकाउंट मान लेना चाहिए। अमेरिकन अप्रोच के अंदर जो है इसको कैपिटल हेडिंग तो है ही, कैपिटल हेडिंग के अंदर दिखलाना चाहिए। ठीक, ड्राइंग है तो ड्राइंग को भी हमको इंडियन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट मानना चाहिए, और अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू तो ड्राइंग तो है। तो ड्राइंग डिक्रीज करता है एसेट्स को, कैपिटल को, तो इसको अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग टू ड्राइंग भी मान सकते हैं, और कैपिटल के हेडिंग के अंदर भी घटा कर दिखा सकते हैं। इससे कैपिटल डिक्रीज होता है, क्योंकि हम इससे पैसे निकालते हैं तो कैपिटल डिक्रीज करता है। ओके, हमको लगता है कि आप लोगों ने इससे सीखा होगा कि कैसे जो है हम इंडियन अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशंस करते हैं डिफरेंट एसेट्स को, और उसके नेचर्स के अकॉर्डिंग टू हमें डेबिट क्रेडिट करना भी यहाँ पर आपको बताया। तो आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ में आए हो। लेकिन फिर भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, फिर से इसके ऊपर एक नई वीडियो हम बनाकर आप लोगों को देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम।